कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5, और आज हम करेंगे अननोन वेरिएबल और कुछ एनसीईआरटी बुक के रह गए क्वेश्चंस। बिल्कुल जी, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि साइन एक्स की वैल्यू जो है वो बिलोंग करती है फ्रॉम -1 to 1, वेयर एज एक्स जिसे हम डोमेन बोलते हैं दैट इज ऑल रियल वैल्यू। आप कुछ भी रख सकते हैं जी। He said that prove that this function is continuous. So you have to prove it continuous if your left hand limit at 0. At 0 mean at 0 negative for the function f of x and x is equal to 0 minus h, where h is so small approaches to 0. So 0 minus h whole square sine 1 upon 0 minus h. Limit h approaches to 0, x square sine minus 1 upon h. So you should know the formula also, that sine of minus theta in trigonometry is equal to minus sine theta. So therefore this resultant is limit h approaches to 0 minus h square sine 1 upon h. अब रफ में देखिए, साइन 1 अपॉन एच जब आप बोलते हो और आप कहते हो कि लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 रखनी है, तो साइन 1 अपॉन 0 मीन साइन इंफिनिटी। सो वट एवर वैल्यू यू सब्सिट्यूट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, अगर आपको साइन का ग्राफ क्लियर है तो द योर होल वैल्यू फाइनली लाइज बिटवीन 1 and -1. Is it clear? So therefore you write down that this value lies between -1 and 1, and whereas h is, so your answer is 0. Clear? Then space नहीं है for your right hand limit, मैं यहाँ लिख रहा हूँ limit x approaches to 0 positive for the function f of x. X is 0 plus h, where h so small approaches to 0. Again substitute the value in place of x, 0 plus h whole square sine 1 upon 0 plus h. So again by the rule this will become h square sine 1 upon h, and h as a 0 and the value of a sine infinity lies between -1 and 1. Finally this is equal to 0. So your left hand limit is equal to your right hand limit and is equal to 0 पे उसने ऑलरेडी आपको 0 दे रखी हुई है. So therefore your function is continuous. उसमें भी क्लियर है, जो हमारा स्टैंडर्ड रूल है वो साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1, बट साइन 1 अपॉन थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 एज सच कोई भी रूल नहीं है, इसलिए वो यहाँ एप्लीकेबल होता भी नहीं. 5.1 exercise question number 17 from your NCERT. He asked the relationship between a and b so that this function is continuous at x equal to 3. Important mark कर लेना जी से. एग्जाम में इसे शॉर्ट करना कंपलसरी रहेगा. उसका रीजन है, जैसे जब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट x approaches to, this one is for 3 negative for the function f of x. There is no any need to write down 3 minus h. Reason? क्योंकि वो नॉट डिफाइन नहीं है, तो आप सीधा 3 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. इज इट क्लियर? फिर भी अगर आपको लगता है 3 माइनस एच रखना है तो आप रख लीजिए. इफ यू वांट टू तो रख सकते हो. ये बाय द वे वो नॉट डिफाइन नहीं है, तो a इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस 1.
Similarly, shortcut में right hand limit, right hand side of a 3 is 3 positive for the function f of x. So this is a function, so 3b plus 3. आपको लिखना है कि फंक्शन is already mentioned in your question that it is continuous at x equal to 3. So therefore, left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 3. So therefore, 3a plus 1 is equal to 3b plus 3. आप इसे as such भी रखिए तब भी ये रिलेशन है. थोड़ा और बेटर करना है, 3a minus 3b is equal to 2, a minus b is equal to 2 upon 3. मैं मार्क कर देता हूं, दिस इज आल्सो अ रिलेशन, दिस इज आल्सो अ रिलेशन. वट एवर जहां आप इसे रोकना चाहें, या आपके एमसीक्यू में आने वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जहां आपको इसे रोकना है वहां आप इसे रोक सकते हैं जी. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 17, 18 फ्रॉम योर एनसीईआरटी. He says that it is continuous at x equal to 0 and he asks the value of a lambda. वो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि क्या वो व्हाट डज इट सेज व्हेन एट x इक्वल टू 1. उसे फिर फर्दर रिस्पॉन्ड करेंगे. फिलहाल उसका जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यूज एट 0 के ऊपर है एंड ही आस्क्स द वैल्यू ऑफ अ लैम्डा. एग्जाम में देना है तो फिर से आपको लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, left hand side of a 0, x approaches to 0 negative for the function f of x. If you wanted to write it down 0 minus h, your wish, either way would not define है नहीं है. Limit h approaches to 0, lambda 0 minus h whole square minus 2 times 0 minus h. By the way, h 0 रख देंगे तो आंसर 0. Equal to 0, right? Next, right hand limit रखेंगे तो, and right hand of a 0 positive for the function f of x. At a right it is 0 plus h, where h is so small approaches to 0. So limit h approaches to 0 for 0 plus h plus 1 is equal to 1. अब क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उसने कहा कि आपका जो फंक्शन f ऑफ x है वो कॉन्टिन्यूज है एट 0 के ऊपर. लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपकी लैम्डा की कोई वैल्यू ही नहीं आपके पास रहती है, राइट? तो आप क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? क्योंकि सॉरी जी, फॉर नो एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा f of x is continuous at x equal to 0. क्योंकि उसने कहा है लैम्डा की बिना किसी वैल्यू के भी ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है. अब इसका सेकंड पार्ट, आप 1 पे क्या कहते हैं? इन शॉर्ट, अगर अपने एग्जामिनर को आपने रिस्पॉन्स करना हो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि उसे कॉन्टिन्यूटी की जो डिस्कशन है दैट इज एट अ 0. 1 पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप कई बार इसे सीधा भी लिख दिया जाता है कि सो देयरफॉर f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर. इसके अलावा हर जगह पर ही कॉन्टिन्यूस होगा. सो देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1. इसमें किसी को कुछ पूछना पूछ लो.
नहीं, लीनियर नहीं है। जब उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसने फंक्शन ही जीरो पे ब्रेक किया, जीरो के अलावा वो ब्रेक ही नहीं कर रहा किसी जगह पे फंक्शन को। दैट में उसमें कोई ऐसा इशू है ही नहीं है, तो रिमेनिंग सभी वैल्यूज के ऊपर वो आपका फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। चलें आगे, किसी और का कोई डाउट? Where h is so small that it approaches to zero, limit h approaches to zero, k cos in place of x 90 minus h upon pi minus 2 times 90 minus h। कोई बताए कि जी cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? sin थीटा। So therefore limit h approaches to zero, k sin h, और डिनोमिनेटर में जब आप सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस पाई प्लस एच, एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट limit theta approaches to zero, sin theta upon theta is equal to 1. So therefore k into 1 is equal to k। क्लियर? किसी ने कुछ पूछना है? मल्टीप्लाई किया 2 से 2 कैंसिल, अच्छा सॉरी इट इज 2h। नेक्स्ट, द राइट हैंड लिमिट right hand side of a 90 for the function f of x is equal to 90 plus h, where h is so small it approaches to zero. So limit h approaches to zero, k cos, replace x with 90 plus h, माइनस माइनस प्लस हो गया, पाई minus 2 times in place of x, yes जी, cos 90 plus theta minus 5. So minus k sin h, और डिनोमिनेटर में minus 2h, this will become a 1. Answer is k upon 2. Question says f of x is continuous at x equal to pi upon 2. So left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of pi upon 2. Left hand limit is k upon 2, right is also k upon 2, and at perfectly pi upon 2 your value is 3. So the value of a k is 6 as your answer. Kuch simple questions, they are in your homework. Done? Continuity बहुत ज्यादा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पिक होती है अगर आपने सैंपल पेपर खरीद रखे हो तो।
The question number 3 from your NCERT example. And question number 4. Question again and again नहीं लिखेंगे. He says examine the continuity of the function. और at किसके ऊपर है वो बार बार क्वेश्चन में आ जाएगा आपके पास. एक ही हेडिंग फिक्स है. कंडीशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये? Because of the formula applied for your left hand limit. Limit x approaches to 0 negative for the function f of x. X approaches to 0 negative 1 minus cos 2x upon x square. Limit x approaches to 0 negative 1 minus cos 2 theta is 2 sine square half the angle upon x square. Are you interested कि 0 minus h रखना है? By the way, directly भी वो 1 ही है. Yes or no? जिन्हें डाउट है फिर से मैं बता दूं. Sin x upon x, limit x approaches to 0, your answer is equal to 1. So therefore this is square and square is equal to 1. So therefore your answer 2 into 1 is equal to 2. Clear? Similarly for your right hand side, अगर आप इसे यहीं रखना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है. Otherwise right hand limit x approaches to 0 positive f of x. Limit x approaches to 0 positive 1 minus cos 2x upon x square. Direct formula again, 2 sine square x upon x square. This is again equal to 1 and answer is 2. This function is not continuous because left hand limit is equal to your right hand limit, but it is not equal to the condition when f of 0. तब ये कितनी है? 5. So therefore f of x is not continuous at x equal to 0. Left hand side of a 2 is 2 negative for the function f of x, where x is equal to 2 minus h, where h is so small that it approaches to 0. So limit h approaches to 0, 2, replace x with 2 minus h minus 3, again replace x with 2 minus h and minus 2 in numerator, again replace x with 2 minus h. लेफ्ट और राइट तो चेक होगा जी. क्वेश्चन है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी. कर लीजिए, डायरेक्ट कर सकते हो. हाँ, लेफ्ट और राइट तो चेक होगा जी. वो तो 2 माइनस एच और 2 प्लस एच से ही होगा. 2 एच स्क्वायर माइनस 8 एच प्लस 3 एच प्लस 8
-6 -2 अपॉन -h। कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं। 2h² -5h अपॉन -h। Limit h approaches to 0, taking h as a common, 2h -5 upon -h. Cancel. Substitute the value -2 into 0 -5. Your answer is 5। आपको टाइम दे देते हैं, आप कोशिश करके 0 + h चेक कर लीजिए। Right of a 2 positive f of x is equal to 2 + h so small approaches to 0, यही नॉट इक्वल टू 2 के लिए है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 इन प्लेस ऑफ x रिप्लेस विद 2 + h होल स्क्वायर -3 टाइम्स 2 + h -2 इन डिनोमिनेटर रिप्लेस x विद 2 + h -2। जिन्होंने कर लिया होगा उनके पास 2h² + 5h upon h आया होगा। Taking h as a common, this will become 2h + 5 upon h. When you directly substitute 0, your answer will be 5. So now you write down that left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 2। जिन्हें डाउट है उन्हें क्लियर है कि f of 2 पे वैल्यू आपकी फिर से 5 ही है। कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी एग्जाम पर नोट कर सकते हो। बाय द वे इसका जो आंसर है ये डिसकंटिन्यूज एट x = 4 है। घर से भी कुछ करेंगे। लॉट मच ऑफ क्वेश्चन इन एनसीईआरटी एग्जाम पर। मैं तो सिर्फ उन्हें पिक करूंगा जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा खास है। ये करना चाहिए अगर आपको करना है तो इसे पेपर में रखना बनता है। और किसी क्वेश्चन को अगर आपने बहुत ज्यादा बार कहीं देखा हो तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये दोनों दिखते हैं। एड 0 पे चेक करना है जी। लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0, so 0 negative for the function f of x is equal to 0 minus h is so small approaches to 0। ओके जी, लिमिट h approaches to 0, क्या रिजल्टेंट आएगा इसका? मॉड एंड cos 1 अपॉन, हाँ जी बताएंगे अब, लिमिट h approaches to 0, मैग्नीट्यूड ऑफ -h एंड cos ऑफ -थीटा। जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं क्लियर है उन्हें बता दें कि cos ऑफ -थीटा प्लस cos थीटा होता है जी पहला पॉइंट। और cos थीटा की वैल्यू जो है वो बिलोंग करती है, सो दिस विल बिकम लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h cos 1 अपॉन h, वेयर h इज 0। 1 अपॉन 0 कितना होगा? इंफिनिटी। एंड दिस वैल्यू लाइज बिटवीन, राइट हैंड लिमिट में आपके लिए लीव कर दे रहा हूं।
नहीं कर पाते तो कंटिन्यूटी में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इंटीग्रेशन में हमें प्रॉब्लम होती है, उसमें ब्रेक करना कंपलसरी। इसमें अगर आप नहीं कर पाते तो जीरो माइनस एच मॉड से पॉजिटिव वैल्यू हर बार निकालते रहो, तब भी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन हो जाएगा, चेक भी हो जाएगा, आंसर भी सही देगा। प्रॉब्लम देगा वो इंटीग्रेशन में। राइट। किस पॉइंट पे चेक करना है? जीरो। आई होप सो बिल्कुल ठीक से पढ़ रहे होंगे जी। ए पे चेक करना है। जिन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा उनको बता दूं, एट एक्स इक्वल टू ए पे है, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, limit x approaches to a negative for the function f of x is equal to a minus h, where h is so small it approaches to 0. a minus h minus a sin 1 upon, गलत लिखा हुआ जी, इसे करेक्ट कर लेना, a minus h माइनस ए, बिकॉज जब आप इसे लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसे प्लस h ही कर देना, और साइन माइनस 1 अपॉन एच, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस एच, बट साइन ऑफ माइनस थीटा minus sin theta, so minus 0 and the value lies between minus 1 and 1, 0 is your answer. इस क्वेश्चन में भी राइट हैंड लिमिट मैं आपके लिए लीव कर दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर है जी अब प्रीवियस के साथ। हाँ जी, डिसकंटिन्यूज एट 4 के ऊपर। हम्म। ये जीरो ही आएगा, ये आप करेंगे जी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, so therefore f of x is continuous at x equal to a. डन। नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं जी, नेक्स्ट शीट पे रिमूव मूव ऑन कर रहे हैं। यस जी, we have to check it at 0. So the left hand limit at x equal to 0. Left is x approaches to 0 negative for the function f of x, whereas x is equal to 0 minus h, where h is so small approaches to 0. So limit h approaches to 0, e raised to power 1 upon 0 minus h divided with 1 plus e raised to power 1 upon 0 minus h. Limit h approaches to 0, e minus 1 upon h, 1 plus e minus 1 upon h. Negative, so therefore 1 upon e raised to power 1 upon h, 1 plus 1 upon e raised to power 1 upon h. Taking an LCM in the denominator, taking an LCM in the denominator, one upon e raised to power 1 upon h, e raised to power 1 upon h plus 1 upon e raised to power 1 upon h, they will cancel.
लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 अपॉन e रेज टू पावर 1 अपॉन h प्लस 1. सो e रेज टू पावर 1 अपॉन 0 कितना होगा? इंफिनिटी. e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है. 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. इंफिनिटी. e पावर इंफिनिटी इज infinity plus 1. Infinity plus 1 is infinity. Something divided by infinity, it is approximately equal to 0. जिन्हें confusion रही हो मैं बता देता हूं. The value of a e lies between 2 and 3, and when someone say e raised to power 1 upon 0, so that means e raised to power infinity, then it approaches to infinity. Okay ji, come on for your right hand limit. For your right hand limit. कितना आंसर है राइट हैंड में आपके अकॉर्डिंगली? इंफिनिटी. ओके जी, राइट हैंड को ट्राई करते हैं. राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड ऑफ अ जीरो, जीरो पॉजिटिव फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच. सो लिमिट h approaches to 0, e raised to power 1 upon 0 plus h, 1 plus e raised to power 1 upon e raised to power 1 upon h, 1 plus e raised to power 1 upon h. क्लियर? बाय द वे अगर आप इसे डायरेक्टली रखें तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म होके ये कैंसिल हो जाएगी, नॉट डिफाइन आ जाएगी, सॉरी. सो देयरफॉर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1, और वो चाहिए नहीं. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद e रेज टू पावर 1 अपॉन h. नॉट डिफाइंड फॉर्म से ही बचने के लिए सारी लिमिट और कंटिन्यूटी चल रही है जी. सो 1 अपॉन plus 1. So limit h approaches to 0. So 1 upon, this is infinity. Is it clear? E raised to power 1 upon h. अभी किया है is infinity. So you know कि when 1 is divided by infinity, नोट कर लेना जी इसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सो लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to a right hand limit, so therefore f of x is not continuous at x equal to 0. Question for you from your NCERT examiner. Answer k is equal to 1 minus 1. इस टाइप में पहले भी बहुत से क्वेश्चन एनसीईआरटी से पिक किए हैं. दिस वन इज फ्रॉम योर एग्जाम्पलर. आंसर k is equal to plus minus 1. ये टाइप कितनी पॉपुलर है आप इसका अंदाजा, फिलहाल सैंपल पेपर बहुत ज्यादा मैंने ओपन नहीं किए हुए हैं. 2014, यहाँ आप अपना टैग लाइन देख सकते हो जिसमें भी 1 माइनस कॉस 4x एक पार्ट वो यहाँ भी लगा हुआ है.
टैग चेक कर सकते हो आप इसमें कितने लगे हुए हैं। अनलिमिटेड वे से आपको ये क्वेश्चन बोर्ड में दिखाई देता रहेगा जी। ये देखिए एक और, आप इस टाइप को हर जगह देखेंगे, हर टाइप में आप इसे देख सकते हो जी। फोर्टीन कर लीजिए जी, करिए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहे हो। नहीं, ये तो मैंने आपको होमवर्क में दिया, अनलिमिट है जी, इसमें तो लिमिट नहीं है। आपको इसमें से जो करवाना है वो कर लीजिए, बाकी आप होमवर्क में लेके जाइए, इसमें लिमिट थोड़ी ना है कितने क्वेश्चन होंगे जी। आप तो मेरे से हजारों क्वेश्चन ले सकते हो, मैं तो एक टाइप को रिकॉग्नाइज करवा। कर लीजिए 13 जी। मैंने तो देखिए आपको होमवर्क में दिए हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को ट्राई कर रहे हैं, जो कि आपको जीरो पे चेक करनी है, जीरो नेगेटिव पे फंक्शन को, तो x इज इक्वल टू जीरो माइनस एच। अगर आप इसे चेक करें तो डायरेक्टली अगर आप इसमें वैल्यू रखेंगे k इंटू जीरो अंडर रूट वन माइनस के इंटू जीरो अपॉन जीरो, सो वन माइनस वन अपॉन जीरो, जीरो अपॉन जीरो, ये नॉट डिफाइंड है। सो दैट इज वाई जब आप इसे जीरो माइनस एच लिखेंगे, एक तो पहले आपकी वैल्यूज चेंज होंगी, इसका भी ध्यान रखना। जीरो माइनस एच, वन माइनस के, जीरो माइनस एच एंड जीरो माइनस एच। यहाँ ब्रैकेट और वैल्यू का खास ध्यान रखना, ये वन माइनस के एच आएगा एंड दिस विल बिकम वन प्लस के एच एंड डिनोमिनेटर इज माइनस एच। क्योंकि वैल्यू रूट में है, सो देयरफॉर यू हैव टू रैशनलाइज इट, वन माइनस के एच प्लस अंडर रूट वन प्लस के एच। To rationalize it, you multiply both numerator and denominator. न्यूमरेटर में ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला अप्लाई हुआ है, तो ए स्केयर, आप में से बहुत सारे शायद ब्रैकेट लगाना भूल जाएं, बहुत सारे ब्रैकेट लगाना भूल जाएं, इसलिए इसे ठीक से याद रख लेना। जो इस क्वेश्चन को पुट ऑफ करेगा उसे बिल्कुल अच्छे से याद होगा कि आप क्या भूल जाएंगे। When you open it, this will become minus 2kh, नेगेटिव से साइन चेंज होंगे, माइनस एच, एच वेरिएबल की वजह से नॉट डिफाइन था, नेगेटिव भी कैंसिल हुआ, आपने वैल्यूज रखी 2k अंडर रूट वन माइनस जीरो अंडर रूट वन प्लस जीरो, सो देयरफॉर 2k अपॉन 2 कैंसिल इज इक्वल टू, कर सकते हैं जी। राइट हैंड लिमिट, इस पे ये नॉट डिफाइन नहीं है, इसलिए आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी अपनी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आप रफ में रख के जाके वैल्यू रखें तो आंसर नॉट डिफाइन नहीं होता है। सो इज इक्वल टू माइनस वन, फिर आप लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर योर लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is equal to f of 0, so therefore k is equal to minus 1 is your answer. So x 0 negative, x equal to 0 minus h, limit h approaches to 0, 1 minus cos k 0 minus h, x 0 minus h and sine 0 minus h. By the trigonometry, cos of minus theta is plus cos theta and sine of minus theta is minus sine theta. So therefore limit h approaches to 0, तो यहाँ तो साइन सेम रहेगा, साइन cos की h, नेगेटिव कॉमन आके h sin h. Then your formula from the trigonometry that 1 minus cos 2 theta is 2 sin square half of that angle. By that rule,
this will become 2 sine square half of that angle h sine h. And for your kind information, sine theta whole square is actually written as sine square theta. So for this one, that mean at a time you require 2h क्योंकि square चाहिए. Instead of 2, you required 4. Multiply with 4. K square multiply with k square. आपने पूछा इसे ऐसे लिखा क्यों है, तो उसका जवाब है 2 साइन स्क्वायर. सो दिस इज साइन के एच अपॉन 2 होल स्क्वायर. अब आप डिनोमिनेटर को चूज करिए. दिस इज आल्सो के एच अपॉन 2 होल स्क्वायर. -2 साइन स्क्वायर के एच बाय 2 क्यों 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर हाफ द एंगल बाय 0 माइनस एच कर चुके हैं. कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा. नहीं, पहले ही अप्लाई होगा जी. जहां तक साइन का केस है, दिस इज h upon sin h. This is 1 left with 4 k square. तो ये 1 हो गया. 2 into 4 k square is equal to 8 k square. सॉरी यहाँ गलत हो गया. ये 4 डिवाइड हुआ था, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा. सॉरी, नहीं, ये 4 यहाँ आएगा. डिनोमिनेटर में डिवाइड हुआ तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ. सो दिस इज 2k square अपॉन 4. राइट हैंड लिमिट आप करना चाहें कर सकते हैं. क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूज है, एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूज है, तो इतना भी कहा जा सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज परफेक्टली इक्वल टू एफ ऑफ 0. लेफ्ट हम निकाल चुके हैं के स्क्वायर अपॉन 2, और एफ ऑफ 0 पे हम जानते हैं वैल्यू हाफ. So k square is equal to 1. That is why k is equal to plus minus of 1. जिन्हें आप कॉन्टिन्यूसली बोर्ड में या सैंपल पेपर में देखते हैं, जिसमें से ये एक वन ऑफ द क्वेश्चन है फ्रॉम योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. And this one is from your NCERT exemplar solved. दोनों ही कंप्लीटली करने हैं. और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक टाइम शॉर्टेज है, तो आप जब अपना कोई भी सैंपल पेपर खरीदें तो उससे आप डिस्कशन में ला सकते हैं. फिलहाल मैंने स्क्रीन पे उन्हें जरूर जगह दी है जो मैक्सिमम रिपीट मोड में आपको मिल जाएंगे हर किसी एक जगह पर. और ये दोनों वो खास क्वेश्चन है जी. थोड़ी देर के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूँ. टेक योर टाइम. और यही लास्ट है, फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी पे चलेंगे. लेफ्ट हैंड limit x approaches to 0 negative for the function f of x equal to 0 minus h, where h is so small approaches to 0. So limit h approaches to 0, sin a plus 1. Here you replace x with 0 minus h plus sin, again replace x with 0 minus h
and in denominator replace x with 0 minus h. Limit h approaches to 0, sine a plus 1 into minus h and sine of minus h upon minus h. By trigonometric rule, sine of minus theta is minus sine theta. So therefore, minus. Here also sine of minus theta. Taking negative as a common and cancel with your denominator. The value will become sine a plus 1h plus sine h and share your denominator h. To complete the trigonometric rules, that sine theta upon theta, where theta approaches to 0, is equal to 1. For that you multiply with a plus 1 both numerator and denominator. This will become a 1. This is also 1. So a plus 1 plus and 1 from here. So your answer is a plus 2 for the left hand limit. Now for the right hand limit, for a 0 positive, for the function f of x, x equal to 0 plus h, where h so small approaches to 0. 0 plus h रखने से कुछ चेंज नहीं होगा, ये आएगा h bh square minus under root h bh raised to power 3 upon 2. स्पेशल क्या है, न्यूमरेटर में अंडर रूट एच कॉमन लेना है. लिखवाएगा कोई, क्या आएगा यहाँ वैल्यू अंडर रूट में? फिर इफ यू टेक रूट एच कॉमन क्या आया फिर? 1/2 व्हाट? एच कॉमन आया होगा, देन इट विल बिकम अ रूट एच. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो. एच कॉमन आया होगा, देन इट विल बिकम अ रूट एच. डिनोमिनेटर में जिन्हें कंफ्यूजन है वो एक बार चेक कर लें. h रेज टू पावर 3 upon 2. h raised to power 3 upon 2 is actually h into under root h. Bases are same, powers are subtracted. Still this is again a 0 upon 0 form. ये अभी भी 0 upon 0 form है. क्योंकि ये 0 upon 0 form है, so therefore now you have to rationalize it. आप रफ में जाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. So to rationalize it, you multiply with under root 1 plus bh plus 1, both numerator and denominator. In numerator, a square minus b square formula, so a square b square. 1 and minus 1 will cancel, and in the next step bh is also cancelled. Now you directly substitute the value of a h, which is 0. So therefore under root 1 plus 1 is 1 upon 2. क्वेश्चन में a, b, c तीनों की वैल्यू पूछी है और उसने ये भी कहा है कि f of x is continuous at x equal to 0. So therefore your left hand limit resultant and right hand limit resultant and perfectly at 0. So from your left you will get the value a plus 2, and from right your answer is half, and exactly at f of 0 your answer is c. तो ये काफी हुआ है कि c की वैल्यू तो आपके पास हाफ आ गई, and a is equal to half minus 2 is equal to minus 3 upon 2. क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आपको b की भी वैल्यू निकालनी है, तो आप उसे लिखेंगे द सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ b. b का कोई रोल नहीं है सॉल्यूशन में, तो b
कैन बी एनी रियल वैल्यू। इमेजिनरी नहीं हो सकती ना, वो तो डिफाइन करना है। अब आप +1 से +2 में इमेजिनरी वैल्यूज भी होती हैं दुनिया में, तो ये लिखना जरूरी है दैट बी इज बिलोंग टू एनी रियल वैल्यू बिकॉज अवर सोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी। जीरो नहीं बोल सकते, कुछ भी रख लो, मतलब इंडिपेंडेंट में कोई भी रियल वैल्यू दुनिया की रख लो, वो हर बार कट ही जाएगी, वैल्यू रहेगी, इमेजिनरी नहीं आप रख सकते।